Hello everyone, in this video we'll discuss one of the most celebrated poems of Percy Bysshe Shelley, Ode to the West Wind. As the title says, it is an ode, long lyric poem dedicated to West Wind. It is also one of the most anthologized poem of Percy Bysshe Shelley. Now let's do the background of this poem. Ode to the West Wind, as the title says, is an ode. It was written by Shelley in 1819 when he was in Florence, Italy, near Cassine Wood. This work was written in 1819, published in 1820 by Charles Collier in London as the part of Shelley's collection Prometheus Unbound, a lyrical drama in 4 acts and other poems. There are two types of odes. First is Pindaric ode and second is Horatian ode. Pindaric ode is impersonal in nature and they are written in exalted tone and celebrate human accomplishment, whereas Horatian ode are personal and they are contemplative rather than public. According to Harold Bloom, this poem Ode to the West Wind is a mixture of these two traditions. It reflects the two type of the tradition of ode. So it is neither Pindaric nor Horatian, it is a mixture of both, because as Pindaric ode, he talks in the exalted tone, he talks about the accomplishment of West Wind, and as Horatian ode, he talks about his personal relationship with the West Wind. So Shelley combines two elements in this poem. In English tradition, the odes were more of a vehicle for expressing the sublime lofty thoughts of intellectual and spiritual concerns. तो English में ऐसे भी ode is used to express the sublime lofty thought and intellectual spiritual concerns. So this purpose is also reflected in Shelley's this ode. Next, let's come to the structure. Ode to the West Wind consists of 5 cantos or 5 acts. It is written in terza rima. Terza rima is a rhyming. Terza rima is written in iambic pentameter. It's a 3-line of interlocking rhyme scheme. So rhyme scheme is ABA, BCB, CDC. We'll see it in the poem. Now let's come to the further. There is 5 cantos and the first 3 sections of the poem describes West Wind's relationship and effect on earth, air and ocean, and in last 2 section poet speaks directly to the West Wind and he asks for its power to lift him up and make him his companion in its wandering. Poem ends with an optimistic note, which is, if winter days are here, then spring is not very far. So this is the poem's structure. Now let's come to the theme of the poem. In this poem, speaker addresses directly to the West Wind. He treats West Wind as a force of death and decay. West Wind is treated as a force of death and decay, but this death and decay is welcomed, because if there is death, there is decay. It means there is rejuvenation, rebirth, there is new life and rebirth is coming soon. And in the final 2 stanzas of the poem, the speaker suggests that he wants to help to promote this rebirth through his own poetry, and this rejuvenation also is political and poetic, a rebirth of the society and the new ways of writing. So let's start the poem. The first stanza is, first we see the terza rima, the interlocking rhyme scheme. You see it's A, B, A, then B, dead, red, bed, B, B, thou, low. So it is a interlocking stanza. So poem starts with an apostrophe where poet addresses the West Wind and calls it, "O wild West Wind." West Wind has been said as wild. So, and he has been addressed to as a breathe, as a sans of autumn being. See, autumn has been personified here as human being. Autumn has been presented as being. तो जैसे human being होता है वैसे autumn को being बोला गया है, और west wind को क्या बोला गया है? west wind को बोला गया है कि वो autumn being की सांसें है.
पोएट सेज दैट दाउ वेस्ट विंड, जिसके अनसीन प्रेजेंस से, फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस लीव्स डेड, डेड लीव्स आर ड्रिवन, डेड लीव्स जो है चले जाते हैं, जैसे तांत्रिक के इंचेंटर के भगाने से भूत चला जाता है, तो वैसे ही वेस्ट विंड के आने से डेड लीव जो है चले जाते हैं। अब डेड लीव के कलर्स क्या क्या हैं? येलो, ब्लैक, पेल, हेक्टिक रेड, और ये सारे जो डेड लीव्स हैं उनको पोएट ने बोला है पेस्टिलेंस, स्ट्राइक एंड मल्टीट्यूड। पेस्टिलेंस इज अ डिजीज, इज अ महामारी, तो ये महामारी से स्ट्राइक एंड मल्टीट्यूड है बिकॉज नाउ दे आर डेड। तो जैसे महामारी से एक साथ बहुत सारे लोग मर जाते हैं, तो वैसे ही जब ऑटम सीजन आता है तो बहुत सारे पत्ते क्या होते हैं, एक साथ झड़ जाते हैं, और इस ऑटम सीजन की सांसें कौन है? वेस्ट विंड। ओ दाउ, अब पोएट कहते हैं कि ओ वेस्ट विंड, यू चैरियटस, चैरियट मीन्स रथ, और रथ क्या करता है? इट डिस्प्लेस वन थिंग टू वन, इट डिस्प्लेसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट गोज मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो यहाँ पे चैरियटस का मतलब है मूव्स, जो मूव करता है टू देयर डार्क विंट्री बेड, विंट्री बेड तक, विंटर के बेड तक ले जाता है किसको? विंग्ड सीड को। तो ऑटम सीजन में जब पत्ते झड़ते हैं तो बीज भी झड़ते हैं, और जब बीज झड़ते हैं तो वो अर्थ में नीचे रह जाते हैं, और अर्थ में नीचे घुस जाते हैं, उसके ऊपर स्नो आती है, इफ यूरोपियन कंट्री, कोल्ड कंट्री, और वहाँ पर उस स्नो के नीचे, कोल्ड के नीचे ये बीज जो है पड़े रहते हैं। कब तक पड़े रहते हैं? जब तक कि सीजन चेंज नहीं आती, स्प्रिंग नहीं आती, और जब स्प्रिंग आती है तो ये सीड जो है पौधे बनकर बाहर निकलते हैं। तो यही बात है कि पोएट कहते हैं वेस्ट विंड को कि ओ दाउ हु चैरियटिस्ट हु मूव टू देयर डार्क विंट्री बेड, अपने विंट्री बेड तक ले जाते हो किसको? विंग्ड सीड को, जहां पर ये विंग्ड सीड लाइक लो, कोल्ड एंड लो, कोल्ड एंड लो नीचे पड़े रहते हैं, किसकी तरह? लाइक अ कॉप्स। देखिए यहाँ पे इसको कंपेयर किया है किससे? लाइक अ कॉप्स, सीड हैज बीन कंपेयर्ड विद कॉप्स विद द हेल्प ऑफ लाइक, सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ सिमिली। विद इन इट्स ग्रेव, अपने ग्रेव में, कब्र में पड़े रहते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि अर्थ के नीचे है तो बोला है विद इन इट्स ग्रेव, और ये अपने नीचे कब तक पड़े रहते हैं? तब तक पड़े रहते हैं जब तक स्प्रिंग सीजन नहीं आ जाती है। अंटिल दाइन अज्योर, तो दाइन यहाँ पे योर है, दाइन मीन्स योर, और यहाँ पे योर कौन है? वेस्ट विंड। तो ये बोलते हैं वेस्ट विंड जब तक तुम्हारी अज्योर सिस्टर, अज्योर इज अ कलर ऑफ स्काई ब्लू, बोलते तब तक तुम्हारी स्काई ब्लू सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग, जब तक तुम्हारी सिस्टर नहीं आ जाती है, और जब स्प्रिंग सीजन आती है तो माहौल पूरा चेंज हो जाता है, द एम्बियंस चेंजेस, और इन द विंटर सीजन अंडर द अर्थ, under the influence of snow, the earth is sleepy, it's dreamy, so when the spring season comes the season changes and flower blooms। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि जब तक तुम्हारी अज्योर सिस्टर जो है ऑफ द स्प्रिंग वो ब्लो नहीं करती है अपना क्लैरियन, क्लैरियन मीन्स ट्रम्पेट, तो ये बोलते हैं यहाँ पे इन्होंने अगेन स्प्रिंग को भी पर्सोनिफाई किया है कि स्प्रिंग सीजन जब आती है तो वो अपने ट्रम्पेट बजाती है, नगाड़े बजाती है, किसके ऊपर? ड्रीमिंग अर्थ के ऊपर, और पूरे अर्थ को फिल कर देती है किससे? विथ लिविंग ह्यूज से, लिविंग कलर्स से, और ऑडर्स से, स्मेल से, प्लेन एंड हिल, पूरे प्लेन और हिल को भर देती है। और क्या करती है? ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स लाइक फ्लॉक टू फ्लीड इन द एयर, और हर जगह स्वीट बर्ड्स, स्वीट कलियां जो है खिल जाती है, जैसे फ्लॉक हो जो कि फीडिंग इन द एयर। तो ये बोलते हैं कि वेस्ट विंड जो तुम आती हो, पत्तों को मूव करती हो, सीड्स को मूव डिस्प्लेस करती हो, और डिस्ट्रॉय के करने के बाद तुम नई लाइफ देती हो, तो इसको बोलते हैं वाइल्ड स्पिरिट। दाउ आर्ट मूविंग एवरीवेयर, तुम एक वाइल्ड स्पिरिट की तरह हो जो हर जगह मूव कर रही हो, एंड यू आर अ डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर हियर ओ हियर, तुम सुनो, तुम डिस्ट्रॉयर भी हो और प्रिजर्वर भी हो। तो यहाँ पर क्या किया? वेस्ट विंड का रिलेशनशिप किसके साथ दिखाया? अर्थ के साथ। इन द नेक्स्ट स्टैंजा, नेक्स्ट कैंटो, पोएट जो है वेस्ट विंड का रिलेशनशिप दिखाते हैं एयर के साथ। तो एयर में क्या होता है? वी हैव ऑल रेड वाटर साइकिल। तो इन वाटर साइकिल व्हाट हैपन्स कि सी से और ओशन वाटर बॉडीज से पानी जो है वो, ये वाटर बॉडीज जो है इससे वेपर जो है इवोपरेट होकर स्काई में पहुंचता है, और स्काई में जो है इट टेक्स द फॉर्म ऑफ क्लाउड। फ्रॉम द वाटर बॉडी the vapor evaporates and it takes the form of cloud and it hangs, the cloud hangs in the air। तो यहाँ पर ये जो रिलेशनशिप है, अर्थ, अगर अर्थ से में पेड़ लगाया जाए तो ऐसे अर्थ में जैसे पेड़ लगाया गया तो पेड़ में फिर पत्ते हुए, और पत्ते झड़ते हैं तो यहाँ पे नीचे एयर से होते हुए नीचे गिरते हैं,
तो अब यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है और बोला गया है कि जैसे सी और स्काई के बीच में एक पेड़ है और इस पेड़ के पत्ते कौन से हैं, क्लाउड्स हैं जो स्काई पे लटके हुए हैं। और ये कब तक लटके रहेंगे, जब तक वेस्ट विंड नहीं आती है और ये पत्तों को मतलब क्लाउड को नीचे नहीं गिरा देती है। तो दिस इज देयर इज वेरी दिस पोएम इज फिल्ड विथ इमेजरी, यू हैव टू इमेजिन अ लॉट। तो यहाँ पर ये क्या बोलते हैं कि दाउ तुम, तो अगेन हु इज यू, वेस्ट विंड इज यू, दाउ हुज ऑन हुज स्ट्रीम, जिसके स्ट्रीम पर, तो स्ट्रीम किसकी होती है, तो स्ट्रीम यूजुअली इज ऑफ वेव्स, स्ट्रीम इज ऑफ वाटर, लेकिन यहाँ पर हवा की स्ट्रीम वेव्स के बारे में बात है। तो यहाँ पे बोलते तुम्हारे वेव्स पे, कहाँ पे, मिड द स्टीप स्काई का मोशन। तो वाई स्काई इज कॉल्ड स्टीप, स्काई को झुकी हुई क्यों बोला गया, कि जब भी आप स्काई देखते हैं तो इट सीम्स दैट इट इज स्टीप, ये झुकी हुई है। तो ये बोलते तुम्हारे वेव्स पे आकाश के बीच में लूज क्लाउड पड़े रहते हैं, लूज क्लाउड रहते हैं। कैसे रहते हैं, लाइक अगेन इस सिमिली लाइक अर्थ डिकेइंग लीव्स आर सेड, जैसे अर्थ के डिकेइंग लीव जैसे नीचे आते हैं तो वैसे ही लूज क्लाउड जो है स्काई में रहते हैं। और ये लूज क्लाउड को बोल रहे हैं जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, द लीव्स are shaken from the tree. So poet says that these loose clouds are shook from the tangled boughs, किसकी टहनियों से, bough means टहनी, किसकी टहनियों से, of heaven and ocean। तो heaven का मतलब क्या हो गया, sky is a name change, so it is an example of metonymy। जब भी हम लोग नाम चेंज कर देते हैं किसी चीज का, तो यहाँ पे स्काई के बदले हेवन लिखा है, तो ये हो गया मेटोनमी। तो पोएट कहते हैं कि हेवन, स्काई और ओशन का जो के बीच जो एक इनविजिबल ट्री है, तो उसमें जो पत्ते हैं वो है क्लाउड, और वो लूज क्लाउड जो है वो आते हैं, वो ऐसे स्टिक रहते हैं बिकॉज ऑफ दिस वेस्ट विंड, और वेस्ट विंड भी जो है इसको शेक भी करेगी। अब इसको बोलते हैं एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग। देर आर स्प्रेड फैले हुए हैं, देर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस, ठीक है, दीज क्लाउड्स आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइन एयरी सर्ज, तुम्हारे ही एयरी सर्ज पर ये क्लाउड जो है टिके हुए हैं। कैसे, लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड, जैसे कि ब्राइट हेयर ऐसे बाल उड़ रहे हो, ऑफ सम फियर्स मैनड। अब देखिए मैनड का जो कैरेक्टर है ये जो है ग्रीक माइथोलॉजी से आता है। ग्रीक माइथोलॉजी में गॉड ऑफ वाइन जो है उनका नाम है डायनोशियस, डायनोशियस, DIONYS, डायनोशियस। तो ये डायनोशियस की फॉलोवर्स होती है मैनड, डायनोशियस की फॉलोवर होती है मैनड। तो जब राइट्स ऑफ डायनोशियस होता है तो दीज मैनड ये जो है भटकती है माउंटेन में और फॉरेस्ट में, और वो परफॉर्म करती है फ्रेंजिड और स्टैटिक डांस। तो और ऐसा माना जाता है कि दे आर पॉजेस्ड बाय द डायनोशियस। तो यहाँ पे क्या है, बाल उसके उड़ रहे हैं। ऐसे भी मैनड वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड मैनेडस से आता है, जिसका मतलब होता है मैड और डिमेंटेड। तो ये मैनड जो है कैरेक्टर जो कि फॉलोवर है डायनोशियस की, तो जब उसके फ्रेंजिड डांस करेगी तो बाल इधर उधर उड़ रहे होंगे। तो ये बोल रहे हैं कि ये क्लाउड कैसे है, क्लाउड बिल्कुल इधर उधर बिखरे हुए हैं जैसे कि वो किसी मैनड के बाल हो। अब बोलते इवन फ्रॉम द डिम वर्ज, कहाँ से कहाँ तक उड़ रहे हैं बाल, कहाँ से कहाँ तक क्लाउड है, डिम वर्ज ऑफ द होराइजन, होराइजन इज स्काई, स्काई के एकदम नीचे वाले लेवल से, स्काई का बहुत लेवल है, नीचे स्काई है और ऊपर स्काई है। तो ये बोलते क्लाउड कहाँ से कहाँ तक है, डिम वर्ज से लेकर के जेनिथ हाइट, जेनिथ मतलब टॉप, जेनिथ मीन्स टॉप। तो स्काई के नीचे लेवल से लेकर के ऊपर लेवल तक ये क्लाउड जो है फैले हुए हैं। और इस क्लाउड को क्या बोला गया है, लॉक्स बोला गया है, अप्रोचिंग स्टॉर्म, कि जो स्टॉर्म आएगी, तूफान आएंगे, वो उसके लॉक्स हैं। अब ये वेस्ट विंड को बुलाते हैं सैड सॉन्ग, बोलते हैं कि वेस्ट विंड यू आर डायर्ज, डायर्ज मीन्स सैड सॉन्ग, किसका हो, ऑफ द डाइंग ईयर, बिकॉज नाउ द ईयर इज डाइंग, बट इफ द ईयर इज डाइंग इट मीन्स द न्यू ईयर इज कमिंग। तो ये बोलते हैं वेस्ट विंड तुम डायर्ज हो, सैड सॉन्ग हो, टू विच दिस क्लोजिंग नाइट, आज का जो क्लोजिंग नाइट है, विल बी द डोम। डोम क्या होता है, कोई भी स्ट्रक्चर के ऊपर जो ऐसा आकृति बनी होती है, वी कॉल इट डोम, ऑफ वास्ट सेपल्कर। सेपल्कर क्या होता है, अ चैम्बर जो कि यूज किया जाता है ग्रेव में। तो वाई सेपल्कर वर्ड यूज किया गया, क्योंकि ये ईयर जो है अब ग्रेव में जा रही है, ईयर खत्म हो रही है। और वर्ल्ड क्या होता है, इसका जो अंडर का एरिया होता है इसको बोलते हैं हम लोग वर्ल्ड,
ठीक है। तो मान लीजिए कोई ग्रेव है, उसके ऊपर का वोल्ट है। तो ये बोलते हैं कि ये तुम डायरज हो सैड सॉन्ग को डाइंग ईयर की, और ये क्लोजिंग नाइट जो है, आज जो रात जो है खत्म हो रही है, वो एक डोम की तरह है किसी बड़े से सेपल्कर की, जो कि वॉल्टेड है। वॉल्टेड है, किससे भरा हुआ है? वॉल्ट मीन्स दिस अंडरग्राउंड चैम्बर ऑफ दाई कॉन्ग्रीगेटेड माइट, तुम्हारी कॉन्ग्रीगेटेड इकट्ठा माइट ऑफ वेपर्स, जिसके सॉलिड एटमोस्फेयर से क्या निकलेगा? ब्लैक रेन, फायर, हेल, ओले, हियर विल बर्स्ट, हियर ओ हियर. So here west wind relationship with the air has been shown, that how west wind controls the cloud, maintains the cloud, and when the right time comes he let it fall from the solid atmosphere in the form of rain, fire and hail. Now in the third stanza poet talks about west wind relationship with on water. तो यहाँ पर देखिए, अब इसमें बोलते हैं कि ये वेस्ट विंड जो है इतनी पावरफुल है कि मेडिटेरेनियन सी, अभी इमेजिन कीजिए कि ये सी है, ये सी है, सी के नीचे बगल में जो है बड़े बड़े टावर्स, ईटीसी टावर वगैरह बने हुए हैं. एक्सक्यूज मी, लेट मी डू इट वंस अगेन. ठीक है, ये सी है और सी के किनारे टावर बने हुए हैं. तो टावर का रिफ्लेक्शन किस पे आएगा? सी पे आएगा, इस सी पे आएगा. इमेजिन दैट देयर इज सी एंड beside the sea there are towers, so towers reflection comes on the sea, and because the streams are crystalline, means stream जो है clear होती है, तो ये reflection जो है एकदम शांत यहाँ पर आप देख सकते हैं. किसके ऊपर? वेव्स के ऊपर. लेकिन जैसे ही हवा आई तो ये पूरा का पूरा वेव जो है वो शांत वेव क्या होगा? मूव करेगा, और ये सारे रिफ्लेक्शन भी जो है वो मूव करने लगेंगे. तो दिस इज द पावर ऑफ द वेस्ट विंड कि ये शांत लहरों को भी क्या करता है? वो मूव करवा देता है. तो दिस इज व्हाट पोएट सेज हियर. सो ही सेज दैट दाउ हु डिड्स वेकन, जो जगा देता है फ्रॉम हिज समर ड्रीम्स. किसको जगा देता है? द ब्लू मेडिटेरेनियन. मेडिटेरेनियन इज सी. तुम जो मेडिटेरेनियन सी, जो शांत सोया हुआ है, उसको भी जगा देते हो. वेयर ही ले, जहां पर वो लेटा हुआ था, सोया हुआ था. लल्ड बाई, लल्ड में ऐसे थपकियां देखिए, लल्ड बाई द कॉइल ऑफ हिज क्रिस्टलाइन स्ट्रीम. अपने क्रिस्टल स्ट्रीम में ये सी जो है आराम से सोई हुई थी. तो जब वेव्स आई, वेस्ट विंड आई, तो क्या होगा? इसमें वेव्स आ जाएगी. तो ये बोलते हैं कहाँ तुम सोई हुई थी? बिसाइड अ प्यूमस आइलैंड इन बेज बे, बे की खाड़ी पर, प्यूमस आइलैंड के बगल में. और तुम अपने समर ड्रीम में, क्योंकि समर ड्रीम था, कोई वेव्स नहीं थी, कोई विंड नहीं थी, तो हवा में कोई वेव्स, सी में कोई हलचल नहीं थी, वो शांत सी बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे वो सो रही हो अपने समर ड्रीम में. और समर ड्रीम में वो क्या देख रही थी? सो इन स्लीप ओल्ड पैलेसेस, ओल्ड पैलेसेस, पुराने महलों को देख रही थी, और टावर को देख रही थी. क्विवरिंग, जो हल्के हल्के क्विवर कर रहे थे, विद इन द वेव्स इंटेंसर डे. तो और ये जो टावर है ये कैसे हैं? टावर जो है थे वो ओवरग्रोन थे विथ अज्योर मॉस एंड फ्लावर्स, और ये इतने सुंदर थे दैट सो स्वीट दैट सेंसेस फेंट पिक्चरिंग देम, कि हमारे सेंस जो है फेंट हो जाते हैं इस टावर, ओल्ड पैलेसेस और टावर्स को पिक्चर करते हुए. और उसका रिफ्लेक्शन मेडिटेरेनियन सी पर उसका रिफ्लेक्शन पिक्चर करते हुए. लेकिन ये बोलते हैं कि ये वेस्ट विंड इतनी पावरफुल है कि जब ये आती है स्पीड में, तो ये जो शांत क्रिस्टलाइन लेयर्स में जो पड़ा हुआ सी था उसको डिस्टर्ब कर देती है, और उसमें एक कैज़म बन जाता है, एक खाई की तरह बन जाता है, एक स्प्लिट आ जाता है. तो ये क्या है? दाउ फ्रॉम हुज पाथ, जिसके रास्ते से एटलांटिक लेवल पावर, एटलांटिक लेवल जो है क्लीव, ब्रेक इटसेल्फ इनटू अ कैज़म. तो यहाँ पर समुद्र में एक कैज़म की तरह बन जाता है, एक क्लीवेज, एक कार्टर या फिशर भी बोल सकते हैं, या रिवाइन भी बोल सकते हैं, उसकी तरह बन जाता है. वाइल फार बिलो, जबकि बहुत दूर, द सी ब्लूम्स, सी जो है वो ब्लूम कर रही होती है. एंड ऊजी वुड्स, जंगल जो है ऊजी, जो कि ऊजी है, डैम्प है विथ मॉइस्चर से. ऊजी मतलब होता है डैम्प विथ मॉइस्चर. विल्च वियर द सैपलेस फॉलिएज, वो जंगल जिसमें सैपलेस, बिना सैप के, बिना ओस के जो फॉलिएज हैं, फॉलिएज मतलब all the leaves of a tree or a plant of the ocean, इन सबको पता है
कि ये तब तक ही शांत है, सी में जो भी ब्लूम्स हैं और सी वुड्स भी जो हैं, इनको पता है कि ये तब तक शांत है जब तक तुम नहीं आ जाती हो। तो जैसे ही तुम्हारी आवाज़ आती है, ये सेप्लेस फॉलियंस सब जानते हैं तुम्हारी आवाज़ को, और तुम्हारी आवाज़ जैसे ही आती है वेस्ट विंड की, दे सडनली ग्रो ग्रे विथ फियर। सब डर जाते हैं क्योंकि पता है कि व्हेन द वेस्ट विंड कम्स, ऑल द सी ब्लूम्स एंड द ओजी वुड्स एंड सेप्लेस foliage इज गोइंग टू बी शेकन विद द पावर ऑफ वेस्ट विंड एंड ट्रेम्बल एंड डिस्पॉइल themselves ओ हियर। सो यहाँ पर रिलेशनशिप दिखाया वेस्ट विंड का किसके साथ? ओशियन के साथ। नाउ इन द नेक्स्ट पोएट, इन द नेक्स्ट 2 कैंटोज, पोएट invokes the west wind to share its power with him। तो अब ये बोलते हैं कि अगर ये वेस्ट विंड होते तो क्या करते? तो ये बोलते हैं कि इफ आई वर अ डेड लीफ, अगर कोई मैं डेड लीफ होता, इफ आई वर अ डेड लीफ, काश मैं कोई डेड लीफ होता। आई विश आई वॉज अ डेड लीफ द माइटेस्ट बियर, जो तुम उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते। इफ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड, आई विश दैट आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड सो दैट आई कुड फ्लाई विद दी। अ वेव ऑफ पेंट, वेव, मैं एक वेव होता, ठीक है, मैं एक लहर होता। टू पेंट मतलब क्या होता है? हाफना बीनीथ दाई पावर, कि तुम्हारे पावर को मैं फील कर पाता। एंड शेयर द इम्पल्स ऑफ दाई स्ट्रेंथ, और मैं तुम्हारी जो इम्पल्स है तुम्हारे स्ट्रेंथ का, उसको मैं फील कर पाता। ओनली लेस फ्री देन दाउ ओ अनकंट्रोलेबल। तो यहाँ पे अनकंट्रोलेबल क्या है? वेस्ट विंड भी बोलते हैं मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ को फील कर पाता, तुमसे बस लेस फ्री होता। अब ये बोलते हैं कि इवन इफ आई वर एज इन माई बॉयहुड, अगर मैं अपने बॉयहुड में भी होता, तो व्हेन यू आर इन बॉयहुड, जब आप बच्चे होते तो क्या करते हैं? इधर उधर भटकते रहते हैं, अनकंट्रोलेबल। तो ये बोलते हैं अगर मैं अपने बॉयहुड में भी होता तो भी मैं तुम्हारा कॉमरेड, तुम्हारा साथी बन जाता ऑफ दाई वंडरिंग ओवर हेवन। जैसे तुम इधर उधर भटकते रहते हो तो मैं भी भटकता, क्योंकि उस समय एज देन, क्योंकि बॉयहुड में व्हेन टू आई आउट स्ट्रिप द स्काई स्पीड, उस समय ये विजन होता था कि हम स्काई की स्पीड को भी क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं, हम स्काई में कुछ भी कर सकते हैं। तो बॉयहुड में ऐसे ड्रीम होती है, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमें अपनी लिमिट पता चलती है, व्हाट वी कैन डू एंड व्हाट वी कांट। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि काश में अगर मैं बॉयहुड में भी होता तो तुम्हारी वंडरिंग जो है उसका कॉमरेड हो पाता, क्योंकि उस समय बचपन में आउटस्ट्राइप द स्काई स्पीड को आउट स्ट्राइप करना मतलब हराना, मतलब डिफीट करना, इसके सेम विजन, वो उस समय विजन नहीं लगता था, कोई ड्रीम नहीं लगता था। आई वुड नेवर हैव स्ट्राइकन एज दस, विद दी इन माई प्रेयर इज माई सोर नीड, आई वॉन्ट दिस पावर फ्रॉम यू, दिस इज माई सोर नीड। अब यहाँ पर ये रिक्वेस्ट करते हो, ओह, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस लाइन्स, सो यू रिमेंबर इट। ओह, लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड, मुझे लिफ्ट करो किसी वेव की तरह, लीफ की तरह, क्लाउड की तरह। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड, I have fallen upon the thorn, the pain of the life, and I am bleeding। और ये बोलते हैं हैवी चेन, एक हैवी चेन है ऑफ आवर्स, घंटों का, हैज चेन्ड एंड बोर्ड वन टू लाइक दी। लेकिन एक हैवी चेन होता है घंटों का, क्योंकि अगर वेस्ट विंड भी है तो उसका भी सीजन जाएगा। तो बोलते हैं तुम्हारे जैसे अनटेम्ड स्पिरिट को भी समय ने क्या किया है? बांध दिया है, टेमलेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड। नेक्स्ट स्टैंजा ही सेज, लास्ट स्टैंजा, अब और रिक्वेस्ट ये करते हैं कि मेक मी दाई लायर, लायर इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एज द फॉरेस्ट इज। तो जब फॉरेस्ट जो है उसमें से जब विंड पास होती है तो क्या होता है? एक म्यूजिक क्रिएट होता है। तो ये बोलते हैं कि तो यहाँ पे फॉरेस्ट को किससे कंपेयर कर रहे हैं? लायर से। बिना एज लाइक के है तो ये क्या हो गया? मेटाफर हो गया। तो ही सेज दैट मेक मी दाई लायर इवन एज द फॉरेस्ट इज, व्हाट इफ माई लीव्स आर फॉलिंग, इट्स नो प्रॉब्लम दैट माई लीव्स आर ऑल्सो फॉलिंग। तो यहाँ पे माई लीव्स क्या है? माई द ईयर्स ऑफ माई लाइफ। तो यहाँ पे नेम चेंज है, मेटोनमी का एग्जाम्पल है। यहाँ पे माई लीव्स क्या है? माई लाइफ या टाइम ऑफ योर लाइफ इज ऑल्सो फॉलिंग, मेटोनमी का एग्जाम्पल है, और फॉलिंग लाइक इट्स ओन। ये बोलते द ट्यूमल्ट जो है तुम्हारे माइटी हारमोनीज का विल टेक फ्रॉम बोथ डीप एंड ऑटोमनल टोन, स्वीट दो इन सैडनेस। अब ये बोलते बी दाउ फायर्स स्पिरिट माई स्पिरिट, बोलते तुम फायर्स स्पिरिट, तुम मेरी स्पिरिट बन जाओ। बी दाउ मी इम्पेटियस वन,
तुम मैं बन जाओ। इम्पेटियस मतलब होता है somebody who does something quickly without thinking, जो इंट्यूटिव होता है, जो इंट्यूटिवली वर्क करता है। तो इंट्यूटिव लोग अनकंट्रोल्ड होते हैं, तो ये बोलते हैं तुम मैं बन जाओ, तुम अपना इंट्यूटिवनेस, अपना इम्पेटुअसनेस मुझे दे दो। और यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं कि ड्राइव माई डेड थॉट्स, मेरे भी थॉट्स जो हैं डेड है, वो डिके कर रहे हैं। तो जैसे तुम लीव्स को पूरे अर्थ में फैला देते हो, मेरे थॉट्स को भी पूरे अर्थ में फैला दो। ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स लाइक विदर्ड लीव्स टू क्विकन अ न्यू बर्थ। जैसे विदर्ड लीव को तुम क्या करते हो, मुरझाए हुए लीव्स को क्या करते हो, सेड कर देते हो ताकि नए पत्ते आ पाए। तो वैसे ही मेरे भी डेड थॉट्स को क्या कर दो, यूनिवर्स के चारों ओर फैला दो, उसको यूनिवर्स में सेड कर दो ताकि मेरे भी नए थॉट्स आ सके। यहाँ पे लाइक से कंपेयर किया है, एग्जाम्पल ऑफ सिमिली। एंड बाय द इनकैंटेशन ऑफ दिस वर्स, ये बोलते हैं जो मैं ये वर्स चैंट कर रहा हूँ, इनकैंट कर रहा हूँ, स्कैटर कर दो, तुम फैला दो। एज फ्रॉम द अनएक्सटिंग्विश्ड हर्थ, जैसे कोई बुझे हुए चूल्हे से, अनएक्सटिंग्विश्ड मीन्स व्हेन देयर इज नो फायर एंड हर्थ इज फायर प्लेस। जैसे किसी फायर प्लेस से, अनएक्सटिंग्विश्ड फायर प्लेस से एसेस और स्पार्क्स हर जगह स्कैटर हो जाते हैं, तो वैसे ही मेरे वर्ड्स को मैनकाइंड तक फैला दो। एंड परहैप्स हिज प्रेयर वॉज हर्ड बाय द west wind, because now the west wind has scattered Shelley's word around the earth, on the earth, over the earth, and so we are reading this poem. और ये बोलते be through my lips to unawaken earth the trumpet of thy prophecy, और तुम्हारी प्रोफेसी को मेरे लिप्स के थ्रू जाने दो। एंड व्हाट इज द प्रोफेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लीजिएगा, बार बार आता है कि ये किस लाइन पोएम, ये लाइन किस पोएम से है। तो ये प्रोफेसी क्या है, ओ विंड इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, अगर विंटर आता है तो स्प्रिंग बहुत दूर नहीं है, स्प्रिंग भी आएगी ही। तो दिस इज अबाउट द रिजुविनेशन, अबाउट द रिसाइकल। दिस इज द पोएम ओड टू द वेस्ट विंड। थैंक यू, कीप रीडिंग, कीप रिवाइजिंग।